ADHD, that means autism. So ADHD, that is attention deficit hyperactivity disorder. Attention deficit hyperactivity disorder. So this is the case of Dr. Praful Vijaykar sir, और सर की भी बहुत पुरानी केस है ये, और बहुत अच्छी तरह से सर ने इस केस को एक्सप्लेन किया है. दिस इज द केस ऑफ माइल्ड ऑटिज्म, mild autistic child. Yes. So this child was 7 years old when he was brought to sir. And this was a special, this child was in a special for school that was for autistic child, mental retarded child, and he was regularly goes in that school. This child having chief complaints of lack of communication and not appropriate to age. So he was 7 years old and his communication was not appropriate to his age. He repeats whenever is spoken to him. The same words he repeats. He was restless if he is not being listened to. Attention, he was attention seeker. अगर उसका सुने नहीं, उसके तरफ ध्यान नहीं, then he become restless. Commands which is familiar, yes. ये उनकी ही बातें सुनता था, मानता था जो उसे फैमिलियर है. सो फैमिली पर्सन्स को ही वो फॉलो करता था. बट ही हैज टू बी मेड अंडरस्टूड. But he has to be made understood, then he will follow. Takes time to understand. But एक बार उसे समझ में आए तो वो उस चीज को फॉलो करता था. आई कॉन्टेक्ट गुड, इम्प्रूव, सेल्फ टॉकिंग. ही इज इन हिज ओन वर्ल्ड. है ना, सेल्फ टॉकिंग था क्योंकि ही वॉज इन हिज ओन वर्ल्ड. वो अपने ही खुद के दुनिया में रहता था. Whatever has happened during the daytime, he keeps repeating. So जो भी होता था, जो भी उसके साथ होता था या फिर जो भी चालू है उसे वो कंटिन्यूअसली रिपीट करता था. And fanatizing about Spider-Man. He was very much fond of Spider-Man. He was fan of Spider-Man. Keeps drawing it all the time. स्पाइडरमैन की पिक्चर बनाना ये उसकी हॉबी थी. कंटिन्यूअसली ही ड्रॉ द पिक्चर ऑफ स्पाइडरमैन. डज नॉट chew food properly. There is no sense of chewing or taste. अगर टेस्ट है तो chewing properly होगा. So swallows it directly. Without chewing, he swallows the food. Cannot speak properly.
If he wants to say something, words do not come out. So not talking properly, speech was not properly. So these are the chief complaints. So बहुत ही प्रॉपर वे से केस ली हुई है, ये बहुत ही अच्छी तरह से केस सर ने इसे लिया है, बाद में एक्सप्लेन भी किया है. So this is the chief complaint. मेडिसिनल हिस्ट्री, इसे क्या क्या अभी तक मेडिसिन दिया गया, ये कहाँ कहाँ गया. तो बिफोर सर ही वाज taking homeopathy from other doctors, and that doctor prescribed him Natramur, Thuja, and Belladonna. He was already on homeopathic treatment. Natramur, Thuja, and Belladonna. His birth history, it was planned pregnancy, full term LSCS, weight at the time of birth was 3.5 kg, cord around the neck, tried immediately after birth, tried immediately after birth, vaccination on the time, breastfeeding normal, and mother's history. कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन बच्चों में किस तरह से हिस्ट्री लेनी चाहिए, इसीलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ कि इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करना है कि इन बच्चों में किस टाइप की हिस्ट्री होती है, कैसी हिस्ट्री होती है, कितने डिटेल में हिस्ट्री लेनी पड़ती है. सो मदर्स हिस्ट्री, आफ्टर बर्थ uterus was not contracting, uterus was not contracting, postpartum hemorrhage, mother had depression for 9 months, mother had depression for 9 months, breastfeeding continued, but mother was not interested in giving breastfeed. That means it was unhappy feeding. It was unhappy feeding. Yes, Dr. Muske. During pregnancy, felt little neglected. During pregnancy, the mother was felt little neglected as husband was busy all the time. So in pregnancy, there was feeling of, that means we can say delusion of neglected feeling towards her husband. Physical generals, appetite. Patient was always hungry. Would sleep throughout night. First year he was very chubby boy. 1 year of age, always demanding for food, very hyper child. Milestone, sitting 5 months, 5th month में ही बच्चा बैठा. Walking in 10 months. After 1 year, very restless, would tear newspapers. He used to walk on toes. He used to walk on toes. This is not a normal thing. No crawling stage. Crawling वहां हुआ ही नहीं. Non-demanding, except food. Not angry. Not a crying baby. Independent child.
कुछ चीजें कॉमन है तो कुछ टोटली ही अनकॉमन है. He used to walk on the toes. His speech was very delayed, 2.5 year old. All vaccinations done on time. 1.5 year when mother was crying, he was 1.5 year old. When mother was crying, he was not responding to sound. तब उनके ध्यान में आया कि बच्चे में कुछ तो भी प्रॉब्लम है. So he was not responding to sound. He was not bothered about the surrounding. Hearing was normal. फर्स्ट सबका यही प्रॉब्लम होता है कि अगर बच्चा, मोस्टली ऑटिस्टिक चाइल्ड में, अगर बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं करता है साउंड को, कॉलिंग को, तो सभी यही समझते कि इसे शायद सुने नहीं आता है ना. तो हियरिंग चेकअप करेंगे, लेकिन ऐसे बच्चों में कम्युनिकेशन देखना चाहिए. जो अगर कम्युनिकेशन डिफॉल्ट है, देन दिस चाइल्ड इज ADHD. यस. सो नो आई कॉन्टैक्ट. दैट्स व्हाई at the 2 years of age this boy was diagnosed as autism. So no listening to commands, would not follow instructions, destructive, moderate, likes to explore the toys, preoccupied, he would make sounds, likes to roam in circle, likes to roam in circle. No social interactions, not emotional, but moody. After that, language therapy, the most common thing in this child therapy, that is the language therapy, speech therapy, motor therapy. The before treatment, it is good, but after treatment, it will create some obstacles in the recovery. Showed some improvement in him. इससे थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट उसमें हुई थी, बट नॉट complete. His family history: mother having tuberculosis and PCOS. So this is general history. Now the mental makeup of this child. He is very mild introverted child. Cries sulkingly. Yes, very sulky. Cries reservedly. Likes to go round and round. Wants to run all the time. Likes to play. He has won a silver medal for swimming Olympics. He is good in swimming. He is a very well swimmer. So concentration less. If not interested, then takes long time to understand. मूड है तो ठीक है, नहीं तो फिर इतना भी कुछ भी बताओ समझाओ, नो, वो मानेगा ही. सो takes a long time to understand. Knows how to operate his laptop. Again, the left brain is well. So interested in Spider-Man, reptiles, dinosaurs, shark, all dangerous animals.
So this is syphilitic. Interested in Spider-Man, reptiles, dinosaurs and shark. तो इसका क्या मतलब हो सकता है? Why this child is interested in Spider-Man, reptiles, dangerous animal, dinosaurs and shark. Power wants. इसका क्या मतलब हो सकता है? Love for power. Yes. तो love for power क्यों? Why? Why he wants power? Because he himself is a weak. Yes. He himself is weak or He himself is weak. weak. Yes. But he is autistic. इतनी अंडरस्टैंडिंग कहाँ है? क्या रीजन हो सकता है इसके पीछे? Mother feels during pregnancy. Mother may feel like that. But here the autism start after the birth, not by birth. Okay. तो इसका मतलब ये होता है कि when she was weaning, the child was on breastfeed, घर में कुछ तभी प्रॉब्लम होता था जिसमें बच्चे को ऐसा परसेप्शन आया कि मुझे पावर चाहिए ताकि मैं इन सब चीजों को फेस कर सकूं, है ना? मदर को ऐसा लगा कि मुझे पावर चाहिए, मैं इन सब चीजों को फेस कर सकूं. सो दैट्स व्हाई ही लाइक्स द पावरफुल एनिमल्स, डेंजरस एनिमल्स, है ना? तो ये बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आप देखो एक इसके पीछे कॉमन थिंग ये है कि हमें जैसा बनना होता है वैसे हम फोटो, उन पर्सन्स के फोटो चिपकाना शुरू कर देते हैं, है ना? उनके पोस्टर्स लगाना शुरू कर देते हैं, माइंड में उनकी इमेजेस बनाना शुरू कर देते हैं. तो बहुत से जो 10th 12th के बच्चे होते हैं, उनके रूम में आपको बहुत से पोस्टर्स दिखेंगे. कोई क्रिकेटर के लगाता, कोई बॉडी बिल्डर के लगाता, कोई कार के लगाता, कोई एरोप्लेन के लगाता, है ना? कोई एक्ट्रेस के लगाता. तो एक वो विजन बनाना शुरू कर देते हैं कि मुझे इस तरह से बनना है ना? यस. सो दिस इज द परसेप्शन, delusion. Yes. So he is very non-conscientious, very affectionate towards parent, likes hugging, kissing. But in school, if someone touches, if but in school, if someone touch him by mistake, then he gets angry and will bite them hard. Will bite them hard. जोर से काटता है. So if anything is done against his will, then he gets upset, will pinch mother. But if he is hurt, he will cry softly, very softly, which is almost unheard. If someone scold him, then he does not like it. He will sit quietly if it's mother.
otherwise gives it back. मदर है तो शांति से बैठेगा, चुपचाप बैठेगा, और दूसरा कोई है तो फिर मारेगा. Always seeking for appreciation. After winning a medal, he knows sense of achieving. Yes, जब उसे स्विमिंग में मेडल मिला, then he knows sense of achieving. Very particular about hygiene and cleanliness. After drawing, he tells her mother or goes to wash his hand immediately. Even at the age of 1.5, 1 and 2 years, he would start weeping when his nappies would get dirty. Sensitive to wet, moist. Yes, immediately it had to be checked. Likes to dress up. Hearing very sharp. He cannot tolerate loud noise at all. Gets very much disturbed. Not a very reserved child, obedient child. Its habit was sucking thumb, pulling mother's hair since beginning. Sensitive to roughness, labels and tags on the collar. Even when goes to shop and he is made to wear t-shirt to try, then also he asked to remove those tags and labels. So very much sensitive to touch the cloths, the labels, the tags. So sensitivity is very high. So this is the mental makeup. Now the general makeup. Appetite increase, can tolerate hunger, likes sour and sweet things, ice cream, chocolate. Aversion or dislikes onion. Thirst is thirsty, likes cold water, thirsty for cold water. Stool was constipated since 2 years back. Now no complaint. अभी नहीं है. Urine normal, perspiration moderate, sleep sound, sleeps 10 hours, salivation during sleep occasionally, dreams not particular, thermally very hot, sensitive to noise, cannot tolerate loud noise, tight clothing does not like it, even the tags and label, so sensitive to clothes. Even around the neck and wrist does not like anything. Traveling sickness, vomiting while riding carriage. So traveling sickness is there. So this is the case. Now tell me the analysis of this case. How to analyze this case? Which symptoms are important? Which miasm? Yes, tell me. डिस्ट्रक्टिव है, सेंसिटिव है, डिस्ट्रक्टिव है, सेंसिटिव है, और yes, और
है ना। तो सोरिक सिम्टम क्या है, साइकोटिक सिम्टम क्या है, सिफिलिटिक सिम्टम्स क्या है? Soric symptoms is very sensitive, restless, Very sensitive to criticism. sensitive to criticism. Yes. Then affectionate है. Affectionate, हाँ sir. Sensitive to noise. Sensitive to noise है, sensitive to clothes है, touch है ना? Yes. Yes sir. Tight clothing है, sensitive to. Psychotic Yes. picture है कुछ? नहीं sir. Sora to sir. Psychotic picture, he was achiever, है ना? He has well हाँ. things Yes yes sir. for achieving Achiever है. medal. Yes. Hugging, kissing, likes. This is psychosis. And syphilitic. Sulky. Yes, sulky, Very restless. restless, क्या Biting चाय के hardly. इसमें bites. Yes, striking, Like biting. others. Yes, this is animal quality, na? Yes. Animal Walk, quality sir. walking on toes. It is animal quality. Walking on toes. Yes sir. It is walking animal quality. But syphilitic, that is, he is a fan Neglected. of Spider-Man. He likes Spider-Man and reptiles, Dangerous animals. dinosaurs, sharks. This is the dangerous animals he likes most. This is syphilitic. You know, again, traveling sickness, it is syphilitic. So traveling sickness is syphilitic. Yes, it is syphilitic. What sir? Traveling sickness, it is syphilitic. Yes. ट्रैवलिंग से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर उसमें आपको वर्टाइगो होता है, पेंटिंग होता है, नौसिया होता है, वोमिटिंग होते हैं, हेडेक होता है, देन इट इज सिफिलिटिक। ट्रैवलिंग इज मेड फॉर ईच अदर, है ना? सबके लिए ट्रैवलिंग बना है, तो किसी को भी ट्रैवलिंग से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आप देखो, जब से इंसान बना ट्रैवल करते आ रहा है ना? इवोल्यूशन ऑफ मैन क्या है? ट्रैवल ही है ना। सो ट्रैवलिंग से हमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई इट इज सिपिलेट। Okay sir. Thank you. यस। Very सो nice explanation. यस, सो एनालिसिस, analysis done by Dr. Vijay sir. This case, when this case was taken, the child was quite restless. Restless, like he was sitting on the chair and was doing all sorts of tricks because he could see himself in the screen. है ना? तो इधर से झांकना, उधर से झांकना, स्क्रीन में दिखना चाहिए, कैमरा में दिखना चाहिए, लाइक दिस। इट्स वेरी रेस्टलेस। So he was sitting on the chair and was doing all sorts of tricks because he could see himself in the screen which is kept next to sir. Most of the time he was acting like a Spider-Man. सर के सामने ही, और सम सुपर हीरो, सुपर हीरो के जैसे, स्पाइडरमैन के जैसे एक्शन करना, and in between he would stand and give pose like a bodybuilder.
by extending and flexing his arms and enjoying looking at himself on the screen in the camera. As Sir heard that he is very much attached to dinosaur, lions, shark, reptiles, Spider-Man, snakes, all aggressive animals and creatures. This means that the child wants power. So here, Sir asked the child's mother that anything during his early childhood, was anyone in family very strict with him? उसे बहुत डांटते थे, मारते थे, अंडर कंट्रोल रखना चाहते थे? Was he been beaten up, or in front of him parents would fight? पेरेंट्स के बीच में, मदर फादर के बीच में झगड़े चलते थे? Child's mother said no. So ऐसी कुछ हिस्ट्री मिली नहीं. Sir said that in most children who want power, one of above situation could be the reason. So ये 100% फिक्स है कि ये कॉन्फ्लिक्ट है और ये होना ही चाहिए, इसके पीछे ये रीजन होना ही चाहिए. जैसे आज एक पेशेंट आया, डॉक्टर रुपेश कदम डॉक्टर ने वो पेशेंट रेफर किया था, भेजा था. छोटी लड़की थी, 7 साल की. उस लड़की के ऑल बोन्स में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही, सभी जगह पे, पैर पे ऐसे बोन्स के नोड्यूल्स आ गए, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन. मदर की 3 घंटे तक हिस्ट्री ली, लेकिन मदर ने एक वर्ड भी नहीं कहा कि उनके यहाँ कोई डोमिनेशन था या फिर कोई डिवैल्यूएशन किया गया या फिर घर में कोई डिवैल्यूएशन की लैंग्वेज चलती है या फिर कोई ऐसे इवेंट्स होते हैं. और बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं. ये इसका बहुत लाड़ प्यार होता है घर में. सिंगल इवन ऐसा अगेंस्ट में एक वर्ड भी मदर ने बताया नहीं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं. 100% उसका रीजन ये है कि वहां फियर थी, फियर अबाउट डिवैल्यूएशन. क्योंकि दैट उस बच्ची के फादर को सेम प्रॉब्लम है. इसका मतलब जब उनको पूछा तो वो बोले हो सकता है कि मेरे दादा को भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, हमें पता नहीं लेकिन हो सकता है. दैट मीन्स ये जो जीन्स में आ रहा है एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन्स, इसका मतलब ये है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत जनरेशन से चालू है. तो इनके घर में कुछ तभी डिवैल्यूएशन की हिस्ट्री पहले से ही है और वही कैरी ऑन होते जा रही है मेंबर्स टू मेंबर. तो ये डिवैल्यूएशन, दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट फॉर बोन, और ये 100% वहां है. इसीलिए जैसा इस केस में भी सर को एग्जैक्ट रीजन यहां मिला नहीं ऑटिज्म का, व्हाई द मदर वांट टू म्यूट और व्हाई दिस चाइल्ड वांट टू म्यूट.
कि वो खुद को इस दुनिया से एस्केप करना चाहता है। इसका रीजन मिला नहीं, लेकिन रीजन है, इट इज श्योर। So, Sir said that the child is attracted to all aggressive animals. He is very sensitive to loud noise and sensitive to reprimands, criticism, to rudeness. Yes. So, इतना सेंसिटिव होने की वजह से अगर वो रूडनेस को, क्रिटिसिज्म को इतना सेंसिटिव है, दैट मीन्स वहां उस इस फैमिली में कुछ तभी हुआ है, कुछ तभी बच्चे के सामने हुआ है, पेरेंट्स के साथ हुआ है। दैट्स व्हाई उसे ये परसेप्शन आया, ये डिल्यूजन आया कि नहीं, इससे तो अच्छा इनसे दूर रहना ही, इस वर्ड से दूर रहना ही अच्छा है, और उसने एस्केपिज्म अपना लिया। लेकिन ये भी वहां परसेप्शन है कि आई वांट सम पावर, ताकि मैं इसको फेस भी कर सकूं। So as the child was constantly making different poses as if he is having lot of strength and power, looking him into the है ना, तो स्क्रीन में वो बार बार देखना, एक्शन करना, पोजेस देना, पावर दिखाना, मसल दिखाना, बॉडी बिल्डर के जैसी बॉडी बनाना। यस, दिस इज कॉल्ड फैंसी। और फैंसी किस चीज के लिए? दैट इज द पावर। सो इट इज most important thing in this case. Delusion, power of, or fancies increased of power. Fancies increase of power. This is the perception here. And Sir asked the mother, does he do the same even at home? She said, yes, doctor. He always doing this. Whenever he is in this world, he keeps imagining himself to be imagining himself to the same strong fellow like his superhero toys. He prepares to be one of them. So this is the perfect perception here. He wants power to fight the other things. So what is the miasm of this case? It is syphilitic. Syphilitic. Yes. His intellect was? His intellect was? Intellect sharp है ना? Good, sharp intellect है ना? Drawing करता है, that means intellect is good. Yes. Willpower. It is fair, timid. Yes. क्योंकि basically the autistic childs are timid, coward, है ना? Fearful. Memory is good. Right? So अब हमें मायाजम तो केस का मिला, इट इज सिफिलिटिक, बट हमें तीनों भी मायाजम के सिम्टम्स इस केस से निकालना है। दैट इज सोरिक सिम्टम्स इज, इट इज ओबेडिएंट, अफेक्शनेट, सेंसिटिव टू रूडनेस, रिप्राइमंड्स। साइकोसिस, ही इज, देखो साइकोसिस में और एक सिम्टम इसमें था, ही वांट्स क्लीनलीनेस, है ना? जैसे ड्राइंग करता था, हाथ
सबसे पहले जाके हाथ धोता था, वेरी फास्टिडियस. देन क्राई, sulking cry and timidity. So this is psychosis and syphilis. The most important जो हमने अभी डिस्कस किया, syphilitic क्या है उसमें? That is the fancy's increased power. Fancy's increased of power. Yes, this is the syphilitic picture of this case. सर Right? फिर यहाँ एस्केपिज्म कैसे समझ में आते हैं केस में? यस, तो एस्केपिज्म यहाँ पे डायरेक्टली मिला ही नहीं केस से, लेकिन इन बच्चों में जो भी ऑटिस्टिक चाइल्ड होते हैं, एडीएचडी के चाइल्ड्स होते हैं, इनमें एस्केपिज्म ही होता है, क्योंकि वो इस कंडीशन से निकलना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, एस्केप करना चाहते हैं, इस है ना, अपने दुनिया में वो रहते हैं और अपनी ही दुनिया में रहना चाहते हैं, बिकॉज कुछ तभी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इनमें मदर थ्रू या फिर उनमें ये बात डेवलप हो गई कि नहीं, ये वर्ड अपने लिए बना ही नहीं. सर आपने बताया था जैसे एंगर भी इसका कॉज हो ही नहीं सकता. नो, एंगर इज नॉट द कंपल्सरी कॉज फॉर दिस ऑटिस्टिक चाइल्ड, ओनली ऑलवेज फियर. टिमिडिटी, फियर. ओके. सर और वैक्सीनेशन की वजह से हुआ है तो? वैक्सीनेशन की वजह से भी बताया है आफ्टर बर्थ में, सर ने अपन ने कल ही डिस्कस किया, लेकिन इस केस में शायद सर को ये पॉइंट प्रोमिनेंटली मिला नहीं होगा कि आफ्टर वैक्सीनेशन ही बच्चे में वो मार्क किया गया, इसलिए वैक्सीनेशन को सर ने यहाँ इम्पोर्टेंस नहीं दिया. ओके. ओके, तो क्या रूब्रिक लेंगे? Delusions or neglected feeling, appreciated, not appreciated. नो, यहाँ पे क्योंकि वो बाय बर्थ नहीं है, इसलिए हम मदर का डिल्यूजन निग्लेक्टेड भी नहीं ले सकते. इट इज आफ्टर बर्थ. Fancy's power increased. Yes, it is the pure syphilitic rubric. Yes, and this is again one thing, याद रखो, ध्यान में रखो ये कि यहाँ पे हमें पॉजिटिव फैक्टर तो मिला ही है, लेकिन उसके साथ साथ उस बच्चे की रिएक्शन क्या है? वॉन्ट्स पावर, है ना. और यहाँ पे एस्केपिज्म की और एक रीजन क्या है? ही वॉन्ट्स पावर. पावर किस लिए? तो फाइटिंग के लिए. दैट्स वाई अंदर से ये उस चीज को फाइट भी करना चाहता है. दैट्स वाई ही हैज द हैबिट ऑफ ड्राइंग ऑफ स्पाइडरमैन, सुपर हीरो, है ना, द पावरफुल एनिमल्स, बिकॉज ही वॉन्ट्स पावर. और हमेशा किसी को भी पावर किस लिए चाहिए होती है? फाइटिंग के लिए, फाइट करने के लिए. तो इसका परसेप्शन देखो, नाउ हियर द परसेप्शन बिकम हिज रिएक्शन. सो ये हमें दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक यहाँ मिला है कि फैंसीज इंक्रीज्ड ऑफ पावर. सो दिस इज द syphilitic rubric and the pivotal rubric is the fancies increased of power. Then उसमें अदर रूब्रिक भी आप डाल सकते हैं, फिर सेंसिटिव टू लाउड नॉइज, सेंसिटिव टू टच, है ना, सेंसिटिव टू टाइट क्लॉथिंग्स, sensitive to roughness, reprimands, rudeness. उसमें सर रेयर सिम्टम है ना, ही इज वॉकिंग ऑन हिज टोज, वेरी रेस्टलेस, वेरी लाइक एनिमल. यस, ले सकते हैं, लेकिन वो रूब्रिक है कि नहीं पता नहीं मुझे. वॉकिंग ऑन टोज. देन फिजिकल जनरल्स में उसमें क्या था? ही वॉज हॉट,
thirsty, sensitive to loud noise, roughness, labels or tags on the collar, does not like it, tightness of cloths around the wrist and neck, does not like it, traveling sickness, vomiting and giddiness while riding carriage, ये भी rubric हम ले सकते हैं, it is syphilitic, and his speed was very fast, and रेपर्ट्राइज के बाद मेडिसिन आती है लैक्टेसिस. Yes. So, Lachesis. yes. So lactasis, looking at the child's disposition, और disposition क्या थी? That is confirmatory point of lactasis is Humiliation, sensitive to tight domination. clothing, है ना? White cloth. Roughness to clothes, hot and thirsty. So lachesis was given to this case, and after 4 months, the follow-up of that child was, he was self-talking, his self-talking improved. जो सेल्फ टॉकिंग था उसमें वो इम्प्रूव हुआ. अभी उसका सेल्फ टॉकिंग नहीं होता है, उसका स्पीच इम्प्रूव. मोस्टली इन बच्चों में स्पीच ही नहीं होता है, दे आर म्यूट चाइल्ड, बट हियर स्पीच इम्प्रूव, comprehension improved. Now he has learned to write alphabet, numbers, his name, hyperactivity reduced, understanding better, chewing 5% better. इसके पहले chewing बिल्कुल नहीं था, है ना? Yes. Speaking English now, generals are better, bedwetting sometimes, urine frequency increased. Again, here, sir prescribed Saclac for 7 months. After 7 months, he came, and the improvement was like that. Language improved, speaking better, hyperactivity become normal, self-talking completely normal, bedwetting normal. He is better than before. So again, Saclac was given. So this was the case. So Lexis 50 m was given. Lachesis Lachesis. 200 was given here, because this case is very old case. और जो सर ने पोटेंसी का बताया था, वो बताया हुआ है SCPH प्लस में. Yes. जो ऑटिज्म के लिए सर ने पोटेंसीज का एक्सप्लेन किया था, वो क्या था? SCPH प्लस में. इसलिए तब सर ने इस केस में 200 ही पोटेंसी यूज की. Yes. Sir, is there any group of medicines which come for autism? एक- ऐसा कुछ है? एक जनरल बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है. जैसे कि हम बहुत बार बोलते हैं कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, वो चीज़ नहीं खानी चाहिए, है ना? जैसे कि बहुत से ओल्ड होम्योपैथ बोलते थे लहसुन, प्याज, कैम्फर जैसे, कपूर, ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए. स्ट्रॉन्ग स्मेल, कॉफ़ी नहीं लेनी चाहिए. लेकिन
सेम थिंग पोटेंसी की है कि इन केसेस में ये पोटेंसी देनी चाहिए, उन केसेस में वो पोटेंसी देनी चाहिए, जो हम पढ़े हैं, जो हमें पढ़ाया गया है। लेकिन मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस ये है कि अगर आपकी रेमेडी परफेक्ट सी मिनिमम है तो आप उसे कौन से भी पोटेंसी में दो, वो वर्क 100% करेगी और करती ही है। इफ द सिमिलिमम इज एग्जैक्ट, फिर वहां पे कौन सी भी पोटेंसी दो आप, वो वर्क करेगी और करती ही है। देन जैसे कि फिर कॉफी, कैम्फर, कोई भी चीज के पेशेंट को कांटेक्ट में आने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वहां पे क्यूर होता ही है। इफ योर पोटेंसी इज 100% राइट। यस, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और देखो इस केस में वही हुआ है, क्योंकि ये आफ्टर बर्थ ऑटिज्म था और वहां पे 200 पोटेंसी में वर्क किया। यस डॉक्टर कंसेप्ट। सर, इज देयर एनी ग्रुप ऑफ मेडिसिन, जैसे कि ऑटिज्म में बहुत सारे बच्चे most of the time they when they are syphilitic, so is there any group of medicine which is there we can think in autism नो, children's? ये कभी सोचना भी नहीं है सर, Okay. ऐसा कभी सोचना भी नहीं कि ऑटिज्म के लिए इतने मेडिसिन ही वर्क करते हैं या फिर इतने मेडिसिन है करके। कौन सी भी मेडिसिन आ सकती है। तो जैसे कि अभी इस केस में सर ने जो रूब्रिक्स लिया, यहाँ पे सर ने कॉन्फ्लिक्ट पे से रूब्रिक नहीं निकाला, सर ने यहाँ पेशेंट का, योर पेशेंट के माइंड से रूब्रिक लिया है ना। तो ये रूब्रिक यहाँ पे लेने का बेस क्या है इसके पीछे का, दैट इज द his delusion, perception and his reaction also। वैसे ही अभी जो केस मैंने बताया डॉक्टर कदम ने भेजी हुई, उस केस में देखो, क्योंकि हमें कॉन्फ्लिक्ट मिला नहीं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारी थिंकिंग है कि ये स्पेशली ये टाइप के डिजीज, बोन रिलेटेड डिजीजेज, जॉइंट रिलेटेड डिजीजेज, बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डिवैल्यूएशन, जैसे कि ट्यूमर ग्रोथ जो भी होता है, सार्कोमा लाइक दिस, तो ये बिकॉज ऑफ फियर की वजह से होता है, इनसिक्योरिटी की वजह से होता है, लेकिन इनसिक्योरिटी रिलेटेड टू डिवैल्यूएशन, पावर, ऑनर, इसके लिए होता है। तो वहां पे कुछ तभी उस चीज के लिए, ऑनर के लिए, वैल्यूएशन के लिए कुछ तभी फियर थी, इनसिक्योरिटी थी, दैट्स व्हाई दैट गर्ल सफरिंग फ्रॉम दैट प्रॉब्लम। small tumors on the bone। अब उस केस में पेशेंट के, तो क्योंकि छोटी बच्ची थी, 7 साल की थी, बच्ची कुछ भी नहीं बोल रही थी, टोटली इंट्रोवर्टेड, और मदर उसकी मदर टीचर थी, फादर भी टीचर थे, फिर भी बहुत ही रिजर्व्ड पर्सनालिटीज थे, कुछ भी फैमिली के अगेंस्ट या फिर जो भी इंसिडेंसेस उनके लाइफ में हुए, उसे एक भी इंसिडेंस को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, डिस्कस नहीं किया, ऑल इज वेल। फिर ऐसे केस में क्या करेंगे, बच्ची जब बॉर्न हुई तो उसका वेट था 3.5 kg। शी वॉज नॉर्मल हेल्दी चाइल्ड, वेट वॉज वेरी गुड। अब वो एकदम कैकेक्सिक है, सो lean, thin, restless child। तो ये कौन से
आयन बोलो या फिर ड्रग बोलो, मेडिसिन बोलो, जिसका ये प्रोमिनेंट सिम्टम है, ये डिस्पोजिशन होती है, रेस्टलेसनेस, calcarea इमेजिनेशन, cause, sir. iodine. Halogens. Halogens. iodine. It is the symptom of iodine. Eating well but losing flesh. बहुत खाती है लेकिन उसके आंख को ही नहीं लगता. This is the word of his mother. बहुत हेल्दी थी बोले और एकदम अभी दुबली हो गई, इसके आंख पे मांस ही नहीं बढ़ रहा. वेरी हॉट, राइट. तो बोन प्रॉब्लम है और इंड्यूरेशन ऑफ बोन्स. इंड्यूरेशन ऑफ बोन्स. सर इंड्युरेशन की एक्झोस्टाल्सिस काय म्हणतात ते? एक्सोस्टोसिस के बजाय आप इंड्यूरेशन ले सकते हैं या फिर और एक रूब्रिक है जो मैंने लिया, मैं बताता हूँ आपको. सॉरी, मेरा ये कारा ओपन नहीं हो रहा है. चालू इसमें जूम में ओपन नहीं होता इसमें. सो इंड्यूरेशन ऑफ बोन्स and his complaint was started on right side. So right side, induration of bones and eating well, losing flesh. और एक रूब्रिक डाला था, उसमें मेडिसिन आई मर प्रोटो आयोड. तो कुछ केसेस अगर ऐसे होते हैं जहां आपको प्रॉपर हिस्ट्री नहीं मिलती, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग उन केसेस के लिए होनी चाहिए. जैसे हमें अगर कॉन्फ्लिक्ट पता है, हमें ये डिजीज होता क्यों है, इसका क्या पॉजिटिव फैक्टर है, उसका माइजमेटिकल रीजन पता होना चाहिए, तो वो केस सॉल्व करने के लिए इजी हो जाती है. यस. सो वैसे इस केस में जैसे कि डिलूजन, it is a strength increasing of is a syphilitic rubric wherein the person in connection with false belief that he is having increased strain, although physically not, they feel that they have lot of strength with which can do many things. For example, those children who are physically weak but they are convinced that they are like Spider-Man, Superman, somewhere after they have seen such things, and after this they start to believe like those superheroes. खुद में वो पावर फील करना, इमेजिन करना और उसके जैसा ही खुद को फील करना. They will climb up at dangerous places क्योंकि उनको लगता है कि हमारे में वो पावर आ गई. अब देखो, इस तरह के परसेप्शन की केसेस बहुत हुई है. कब? जब टीवी पे एक सीरियल चलती थी, कौन सी सीरियल थी वो? शक्तिमान. शक्तिमान, है ना. तो जो बच्चों में डिल्यूजन है, डिल्यूजन स्ट्रेंथ, डिल्यूजन पावर, तो बहुत से बच्चे की डेथ उस टाइम पे हुई. कोई बच्चे टेरिस पर से गिर गए, है ना, जंप कर दिया. दीज आर द हिस्टेरिकल पर्सनैलिटीज. यस. सो will they will climb up at dangerous places
or with other elder children, they will try to fight like wrestlers, or such children feel they can jump from second floor, can hit the elephant, and elephant will fall down. Yes, तो ऐसा खुद को समझ लेते हैं. This is delusion. But this attribute should be seen in many instances and not just based on one single incident. One should come to the conclusion. तो ऐसे केसेस में ओनली एक बार हुआ तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है. ऐसा अगर बार बार हिस्ट्री में मिलता है तो इट बिकम अ most important. So Fancy's power increase of is also a syphilitic rubric wherein the person or the child will just imagine himself that they have lot of power, imagine himself to be very powerful. For example, he imagines that he is into fighting with criminals and he has defeated them. Yes, all such things he keep imagining, as well as we can see in the above case that the child, whenever he would be free, he would portray himself like having lot of strength or superhero, which is out of his fancies, that is the imagination or perception. So किस तरह से इमेजिनेशन होता है, और मोस्टली ऐसे पर्सनालिटीज ही इस चीज से सफर होती है. दैट्स वाई दे सफर फ्रॉम लाइक दिस डिजीजेस. और अगर ऐसा नहीं हुआ ना, ऑटिज्म नहीं हुआ, म्यूटिज्म नहीं हुआ, ADHD नहीं हुआ, तो दे विल सफर फ्रॉम हिस्टेरिकल डिजीजेस और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स. सब कुछ खेल है परसेप्शन इमेजिनेशन का. यस, सो दिस वाज द केस. तो मुझे ऐसा लगता है कि इस केस पर से बहुत कुछ आज सीखने को मिला. एनालिसिस, किस तरह से रूब्रिक लेने चाहिए, कैसे रूब्रिक लेने चाहिए. यस, सो किसी को कोई क्वेरी, डाउट? यस यस सर सर. ये सर का किधर है ऑटिज्म का केस, कौन से बुक में सर का? ये केस बुक में नहीं, ये केस वर्कशॉप में हुआ था. वर्कशॉप महाबलेश्वर. यस, सर ये बच्चे डेल्यूजन, परसेप्शन, ये तो सब प्रॉब्लम्स रहते हैं ये लोग में, बट एवरी पेशेंट और या तो बहुत सारे पेशेंट में डेल्यूजन, परसेप्शन ये इशू तो रहता ही है. सो शुड वी सी दैट कि वी शुड इंक्लूड द डेल्यूजन ऑफ व्हाट ही इज गोइंग थ्रू, ऐसा कुछ डेल्यूजन फाइंड आउट भी करना है क्या उसका कुछ, इफ एट ऑल? यस. ये कब होता है डॉक्टर? जब हम प्रॉपरली हिस्ट्री लेते हैं तभी ये सब चीजें पता होती है, निकलती है. अगर हम प्रॉपरली केस टेकिंग नहीं करते हैं, डीप तक नहीं जाते, तब तक उसके इमेजिनेशंस, परसेप्शंस, डिल्यूजन, इल्यूजन, हॉलुसिनेशंस तक पहुंच ही नहीं पाएंगे. तो ये होते हैं, 100% मिलते हैं ऐसे रूब्रिक, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और ये रूब्रिक अगर मिल गए, बिकॉज दिस रूब्रिक्स आर फ्रॉम सिफिलिटिक माइजम, तो ऐसे रूब्रिक अगर मिलते हैं तो क्योर की श्योरिटी भी बढ़ जाती है. यस, तो ऐसे केसेस में लाइटली नहीं लेना, उसे उतना ही इम्पोर्टेंस देके हिस्ट्री लेना चाहिए. जब तक कुछ मिलता नहीं तब तक छोड़ना नहीं चाहिए. अगर नहीं मिल रहा है देन
जैसे कि कुछ कुछ केसेस में अभी, जैसे कि छोटे बच्चे की केस है तो हमें टोटली डिपेंड होना पड़ता है मदर पेरेंट्स पे, लेकिन अगर ऑब्जर्वेशन में से कुछ मिल रहा है दैट इज द परफेक्ट थिंग। जैसे कि आज के केस में पेरेंट्स से कुछ भी नहीं मिला, तो जो चीज ऑब्जर्वेशन में से निकली दैट इज द परफेक्ट थिंग। फिर वो फिजिकल जनरल ही सिम्टम क्यों ना, फिर आप उसे थोड़ा सा मेंटली मैच करो और आप यू कैन प्रिस्क्राइब। यस, और सर, और वो जो आपने बताई केस 7 इयर्स की गर्ल, वो नोड्यूल्स ऑन ये बोन्स पे, तो उसका डिस्पोजिशन वगैरह आपने लिया ही नहीं ऐसा कुछ, या मैच किया था लड़के का शी इज डिस्पोजिशन? एंग्री, डिस्पोजिशन इज एंगर। अच्छा, यानी गुस्सा करती है हमेशा कोई भी बात पे? इसीलिए मैंने बोला कि जो मेंटल्स डिस्पोजिशन जब आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, सबसे पहले आपने मेडिसिन तो निकाल लिया, लेकिन जब देने का टाइम आता है तब हमें कंफर्मेटरी पॉइंट्स देख के ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होती है, राइट? ओके। तो जैसे वो मर्क्यूरी का वो कॉन्ट्ररी या जो भी है कॉन्ट्राडिक्टरी ऐसा वगैरह, वो भी राइट, देखना चाहिए उसमें, यस। आना चाहिए। जो मर्क्यूरी के प्रोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं, दैट मीन्स प्रोमिनेंट बोलने की बजाय अगर आप डिस्पोजिशन बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो डिस्पोजिशंस होते हैं वो अगर मैच हो गए, वो फिर कौन सी भी रेमेडी हो, तो हमें डिस्पोजिशन मैच करना होता है। जैसे कि इस केस में सर ने उसका डिस्पोजिशन मैच किया लास्ट में, कि लैकिसिस का डिस्पोजिशन ये होता है कि स्पीड फास्ट होती है, और दूसरा सेंसिटिव टू क्लॉथ्स होता है पेशेंट, है ना, टाइट क्लॉथिंग सेंसिटिव टू होता है। तो ये जैसे सर ने डिस्पोजिशन वहां मैच किया, वैसे इस केस में उसका एंगर था, मर्क्यूरी इज एंग्री, ना, देन राइट साइडेड, फिर उसमें आयोडम मिला, बेसिकली मर्क्यूरी इज ओबेज, एंड दैट चाइल्ड वाज एट द टाइम ऑफ बर्थ शी वाज ओबेज, 3.5 kg बर्थ वेट, और मतलब बेबी, फीमेल बेबी का वेट इतना नहीं होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड शी वाज 3.5 kg, that means she was obese. Now she is become totally lean thin cachexy. So it is important, that is the iodine element and mercury element. Yes. सर, और ऐसा कुछ आप बता सकते हो, जैसे ओबेज चाइल्ड है, ओबेज लड़का है, पर ही इज वेरी फिजिकली एक्टिव, रेस्टलेस रहता है, ओबेज है फिर भी रेस्टलेस, या फिर प्लेइंग डिजायर, हमेशा खेलते रहता है, तो ऐसा Is कुछ टिपिकल mercury. Obese है but active है, is more हाँ, mercury. यानी प्लेफुल, हम सोचते हैं कि ओबेज है तो खेल नहीं सकते, पर बहुत प्लेफुल है। Very active. Mercury, उसमें एक थुजा भी आता है, but थुजा ओके। is very cautious. हाँ हाँ हाँ, लगना नहीं चाहिए ऐसा वो Yes. खेलेगा ना, हाँ ओके। जो बोलते हैं ना फूक फूक पे पानी पीना, that is थुजा, very cautious. ओके ओके। सर ओपियम? ओपियम इज मेंटली फास्ट होता है, फिजिकली स्लो होता है। ओके सर, एम आई राइट? ओके सर। कि फिजिकली लाइको, लाइको लाइको मेंटली स्ट्रांग और फिजिकली वीक, लाइको ना? लाइको कलक्रिया, फिजिकली टू वीक इज कलक्रिया। यस, ओपियम इज क्विक इन एक्ट but slow in physics. Yes. So okay, केस समझ में आई पूरी पूरी तरह से? हम्म। आप लोग बहुत ही साइलेंट हैं, बिल्कुल और केसेस चाहिए सर? नहीं बिल्कुल सर, शोर शराबा सर मत करिए। सर केस हाँ, बहुत अच्छे आपने बताए। अभी कल का जो टॉपिक डिस्कशन हुआ उसके अनुसार से मतलब
ऑटिज्म में मेंटल सिम्टम नहीं लेना है, जैसे कि मैंने आप पूछा था ना, मतलब उसका रिएक्शन क्या है, मतलब आपने निग्लेक्टेड फीलिंग, ये अभी डिफरेंशिएशन सबके सब में क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अभी जो इसमें जो मेंटल नहीं पकड़ना है, मतलब आइलमेंट्स फ्रॉम जो अभी क्या है, ऑटिज्म इसका बर्थ के बाद आया है, कल के लेक्चर से रिलेटेड है। तो कल के लेक्चर में आपने बताया वो क्लियर हो गया, मतलब कैसे आपने केस डिफरेंशिएट किया, अभी पूरा ये कंफर्म हो गया, मतलब हमें पूरा ज्ञान हो गया कि अभी ऑटिज्म में जैसे आपने एलिमेंट्स फ्रॉम नहीं तो ये मदर का निग्लेक्शन फीलिंग लेना नहीं, बच्चे में क्या रिएक्शन आया, बच्चे में क्या देखना चाहिए, ये समझ में आया उसका रिएक्शन क्या था। जैसे आपने रूब्रिक या माइंड और कोर क्या था केस में, ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझा है। उसके बाद में आपने डिफरेंशिएशन रेमेडी के बहुत अच्छे बनाए सर, सिखाए। थैंक यू सर, वेरी नाइस लेक्चर टुडे। यस, थैंक यू। अच्छा केस था सर, और डिफरेंशिएट भी आपने अच्छा किया। ठीक यस, है सर। थैंक यू वेरी मच। ऐसा शोर शराबा अगर रहा तो बहुत मजा आता। सर और हेलो सर। हाँ हाँ, बोलिए। अगर इसके और भी केसेस रहेंगे तो बताइए हमें कल, और यस, ऑटिज्म के मतलब हाँ जहाँ सर। प्रेगनेंसी या मतलब अलग अलग डिफरेंशिएट कैसे कैसे हिस्ट्री समझने के लिए। केसेस ऑफ ऑटिज्म सर, उनको भी वो मुझे एक्चुअली कुछ भी मतलब समझ और नहीं आ रहा आप लोग क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सर ऑटिज्म का अभी और भी केसेस बताइए कल, बिल्कुल मतलब बिल्कुल अपने बिल्कुल क्लासेस में, बिल्कुल। और अरे मतलब आप एक साल हम साथ में रहने वाले हैं, बेफिक्र रहो, बहुत कुछ होने वाला है। हाँ सर, मतलब अभी ऑटिज्म चल रहा है तो अभी उसी को कंटिन्यू रखते हैं केसेस देखते के हैं थ्रू। देखते हैं। बीच बीच में रहा, एक ही बार अगर खा लेना तो बाद में फिर वो भूल जाते हैं, इसलिए बीच बीच में लेंगे तो और रिवाइज होते रहता है। यस यस सर। सर, हिस्ट्री और समझ में आएगी कि यस, कैसे लेना। यस डॉक्टर मोहित है। हाँ सर, और ये आपने कल जो हमने क्वेश्चन किया था जो पोटेंसी सिलेक्शन का, ये भी अपने आज अपना अपना एक्सपीरियंस बताया, 20 years का एक्सपीरियंस, जो रेमेडी अगर एग्जैक्ट सिमिलम राइट राइट रेमेडी हो तो आपको वो देखना नहीं है, मतलब ये आपका एक्सपीरियंस है सर, ये आपने बता दिया। अगर रेमेडी राइट है तो वो डेफिनेटली एक्ट ही करेगी, वो रिजल्ट हम लोग एग्जैक्ट, मतलब सर कहते हैं ना, होम्योपैथी इज अ मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू दैट हम रिजल्ट दे सकते हैं उसमें। और आपने ये बता दिया, ये बहुत सर कल से रिलेटेड, इसका कल जो मुझे मेरा क्वेश्चन था पोटेंशियल सिलेक्शन का, तो आपने ये भी आज सिखा दिया, मतलब कि ये पोटेंशियल सिलेक्शन कितना इम्पोर्टेंट, अगर राइट हो तो वो काम ही करेगा। तो थैंक इसका यू सर। इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि होम्योपैथी रियली इट इज अ लॉजिस्टिक, है ना, इट इज अ क्या बोलते हैं अपन, होलिस्टिक साइंस। क्योंकि वहां पे मेडिसिन वर्क करती ही नहीं, वहां पे वर्क करती है वो एनर्जी। और अगर आपका सिलेक्शन परफेक्ट है, वहां पे अगर एक बार स्टिमुलेशन मिल गया तो मेडिसिन का तो काम खत्म हो गया। अब वहां पे क्योर करेगी उसकी ही एनर्जी, पेशेंट की जो स्टिमुलेटेड है, जो स्टिमुलेशन उसे मिला है, वो एनर्जी फिर ना किसी चीज से कम होगी, ना किसी चीज की वजह से वो डिस्ट्रक्ट होगी, अगर वो अच्छी तरह से स्टिमुलेट हुई है तो ही। क्योंकि मैंने बहुत केसेस में ये ऑब्जर्व किया कि जैसे कि नक्सोमी का पेशेंट या फिर बहुत से रेमेडीज में ऐसा है कि कॉफी लेने के बाद मेडिसिन उतर जाती है, लेकिन मैंने उन पेशेंट्स को कॉफी लेने को बोला, लेकिन वहां पे रिकवरी स्टॉप हुई नहीं, रिकवरी 100% हो गई। ये मैंने बहुत से केसेस में देखा, जानबूझ के मैंने ये एक्सपेरिमेंट किए कि सही में इसमें कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं क्या, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट आए। आपको देखो, मैंने गैंग्रीन की एक केस बताया था, नक्सोमिका की हाँ केस सर। थी, है ना। वो पेशेंट को स्पेशल डिजायर थी कॉफी की, और उस पेशेंट को मैंने मतलब नक्सोमिका देने के बाद उनको बोला कि इसको दिन में 3 बार कॉफी पिलाओ, कुछ नहीं होगा।
और वो पेशेंट कितने अच्छी तरह से क्योर हो गए। लेकिन सर ये आपका एक्सपीरियंस फिर गैंग्रीन के बारे में भी बताए, उसको उसमें क्या क्या लेना चाहिए और उसमें कैसे, अगर गैंग्रीन अगर टो को होता है और बाकी उंगलियों को होता है तो उसमें कैसे जाना है, एक बार आप वो केस भी सर पढ़ा देना मतलब। वैसे वो केस में तो हुआ ही है, लेकिन फिर भी और ले लेंगे एक बार। ओके। हाँ नहीं हुआ है सर, लेकिन उस टाइम पे इतना ये नहीं था, तो समझ में नहीं आया, फिर एक जो बार। मोस्ट जो एक्यूट केसेस होते हैं, जो फास्ट मूविंग सिपिलिटिक केसेस होते हैं, ऐसे केसेस में जो प्रेजेंट है उसे हमें सिलेक्ट करना होता है, उसे ही लेना होता है, उसे ही पिकअप करना होता है, क्योंकि उनमें ही जो पाइवोटल रूब्रिक्स होते हैं वो उनमें से ही निकलते हैं, जो बहुत ही PQRS सिम्टम्स होते हैं, और हमारे सामने जो प्रेजेंट है, जो दिख रहा है, उसे ही पिकअप करना है। जैसे कि आप देखो, कल एक मेरे पास केस आई हेमीप्लेजिया की, रात में 9-10 बजे वो केस आई। ओल्ड लेडी है जिसे वन साइड पैरालिसिस हुआ, टॉकिंग वाज टोटली, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, टोटली प्रैटलिंग था, मतलब वर्ड ही नहीं आ रहे थे। देन पावर ऑफ हैंड वाज टोटली लॉस। पेशेंट मॉर्निंग से ही उसे लूज मोशंस वोमिटिंग हो रहे थे। अब ऐसे केस में एक्यूट केस है, फास्ट मूविंग है, और उसमें लूज मोशंस भी है, बीपी वाज जो मतलब बीपी 150/60 ही था। देन कंप्लीट पेशेंट कोलैप्स कंडीशन में था। तो ऐसे कंडीशन में रिलेटिव्स आए, रिलेटिव्स इतने घबराए हुए, पेशेंट सिम्टम बता ही नहीं सकता। तो ऐसे टाइम पे ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, किस तरह से ये केसेस सॉल्व करना। तो जो प्रेजेंट है, जो हमें दिख रहा है, उसे सबसे पहले ऑन द बेस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन उसे पिकअप कर लो। देन जो भी कुछ हिस्ट्री अगर मिलती है तो उसे लो। तो पेशेंट की हिस्ट्री ये थी कि एक 4 दिन पहले उसकी छोटी सिस्टर की डेथ हुई, और उसके नेक्स्ट डे में उसके मतलब सन ग्रैंडसन की डेथ हुई। यस। तो पहले दिन सिस्टर की, दूसरे दिन ग्रैंडसन की। सो यहाँ पे एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ चाइल्ड आया। दूसरा पैरालिसिस लेफ्ट साइड आया, हेमीप्लेजिया। तो अब ऐसे केसेस में आप पूरी हिस्ट्री लेंगे, उसमें क्या रूब्रिक्स लेंगे, तो हमें अकॉर्डिंग टू माइज्म, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन केस को सॉल्व करना होता है, क्योंकि फास्ट मूविंग डिजीजेस होते हैं, सिपिलिटिक डिजीजेस होते हैं। पेशेंट को उस कंडीशन से सबसे पहले बाहर निकालना है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंसिडरेशन रेमेडी दिया पेशेंट को। पेशेंट का रेमेडी देने के बाद 12 बजे तक बीपी बिकम ओके, पेशेंट कम फ्रॉम कोलैप्स कंडीशन, टॉकिंग वाज इम्प्रूव्ड। आज पेशेंट बहुत अच्छा है, पेशेंट ने फूड भी लिया ओरली, ही वाज ओके। तो इस तरह का प्रिस्क्रिप्शन हमें एक्यूट कंडीशन में करना है, लेकिन जो इमरजेंसीज होते हैं वो इस तरह से हैंडल करनी होती है। फिर ऐसे कंडीशन में जैसे कि जो अकॉर्डिंग टू एफोरिज्म 147 जो हैनेमन ने कहा है कि हमें जो दिखता है सबसे पहले उसे आप देखो और सिलेक्ट करो। फिर आप अगर पूरी हिस्ट्री लेंगे तब तक पेशेंट क्या होगा, पेशेंट रहेगा नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि हमें पेशेंट को उस जो क्या बोलते क्राइसिस होता है, उस क्राइसिस से निकालना होता है। यस।
तो ऐसे केसेस जब आप हैंडल करेंगे, जब निकालेंगे, तो उसमें से एक्चुअली एक्सपीरियंस बढ़ता, कॉन्फिडेंस बढ़ता, नॉलेज एक्सपीरियंस पे बेस पे जो आता है वो परफेक्ट ही होता है। यस हेलो सर। सर क्या क्या दिया हेलो था सर, सर आपने? आप है ना, इन डिटेल एक्यूट केस टेकिंग और क्रोनिक केस टेकिंग लीजिए सर प्लीज। उनका केस तो हमारे पास नहीं आएगा, आएगा तो भी हमको आपके पास रेफर करना पड़ेगा, इतना हमारा लेवल नहीं है। तो आप हमको अगर एक्यूट केस और क्रोनिक केस का लेने का और उसमें क्या देखने का, अगर आज ने ऐसा आपने ऐसा भी केस बोला पैरालिसिस का, वैसे अगर हमको थोड़ा थोड़ा हिंट देते गए तो मेरे जैसे नए स्टूडेंट को थोड़ा सा नॉलेज, यस ना आपका डायरेक्ट नाम, ऑटिज्म आएगा तो वो मेरे को रेफर ही करना पड़ेगा किधर तो। आपका नाम कलबुर्गी सर, जी? कलबुर्गी। कल मुर्गी। कलबुर्गी कहाँ से आप? सतारा। ओके। तो एक्यूट का एक्चुअली हमारा हो चुका है, एक्यूट किताब जो हमने लिया है उसमें केस टेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया है ना, फिर भी इसमें भी कवर होगा आगे। यस नहीं सर, हम सभी को सर से यस। तो ठीक है, चलो कल सर मिलते हैं। सर हाँ सर सर एक आपने क्या रिक्वेस्ट। दिया थैंक यू था? सर। सर हाँ ये जो आपने कॉन्फ्लिक्ट का, ये अभी कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलते सीरियस। अभी आपने एक केस बताया ना अमर कायट का, तो कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिलते, मिल नहीं जाता है, हम कितना भी डीप प्रोब करें लेकिन नहीं मिलता है। फिर उस सिचुएशन में क्या अब करना है? अब देखो क्या है, अपन ने अपने सेशन का भी नाम कॉन्फ्लिक्ट रखा है, बराबर, कॉन्फ्लिक्ट स्टडी। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं कि आप एग्जैक्ट यस कॉन्फ्लिक्ट ढूंढो उसमें कि भाई इसकी वजह से ही यस। ऐसा हुआ, यही इमोशन हम्म। उसके पीछे था। कॉन्फ्लिक्ट आपको हर चीज में देखना है। अब जो हम डेली पढ़ रहे हैं, इसमें आपने शायद किसी ने पूछा नहीं, लेकिन किसी ना किसी के मन में ये आ गया होगा कि सर ने तो कॉन्फ्लिक्ट पढ़ाने का बोला था, फिर ये क्या ले रहे हैं। लेकिन आप हर हर सेशन में देखो कि इसका बेस ही कॉन्फ्लिक्ट है ना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं कि हमें वो खाली पर्टिकुलर वही देखना है, इमोशन उसका देखना है, फिर ये साइड का है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ये होता है, ये ऑर्गन का है तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ये होता है। आज की केस में हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि उस यस केस सर। में ये कॉन्फ्लिक्ट होता है लेकिन उस पेशेंट में वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला। कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी तो हो गई कि भाई ऐसे यस सर। केस में ये कॉन्फ्लिक्ट देखना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो क्या देखना चाहिए। फिर हमें ओनली कॉन्फ्लिक्ट ही पढ़ना है कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला तो भी हमें केस सॉल्व करना है तो क्या देखना चाहिए, ये भी तो पढ़ना चाहिए। एम आई राइट? यस सर, यस सर। तो यस सर। यस सर। यस आगे उसकी थ्योरी है ना सर कॉन्फ्लिक्ट का, वैसे तो यस, कॉन्फ्लिक्ट का हैमर्स का थ्योरी भी लेंगे ना सर आगे, वैसे थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए। कॉन्फ्लिक्ट की स्टडी बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही स्मॉल है, वो तो 2-3 दिन में फिनिश हो जाएगा। सर एक्चुअली प्रैक्टिकली कॉन्फ्लिक्ट मतलब इसका सीधा सा रीजन ये है ना, है कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन पेशेंट को खुद को मतलब हम लोगों को भी खुद को समझ में ही नहीं आएगा है ना कि ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा किसी भी पर्सन को, यस, वो खुद कॉन्फ्लिक्ट के बताएगा भी कैसे ना। कॉन्फ्लिक्ट के दो मेजर बेनिफिट ये है कि अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट पता है तो आपकी हिस्ट्री टेकिंग बहुत ही परफेक्ट होगी। मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप कोई भी केस की हिस्ट्री ले सकते हैं, किसी भी पेशेंट की हिस्ट्री ले सकते हैं। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट पता है कि इस केस का कॉन्फ्लिक्ट ये है, तो फिर डायरेक्टली आप उस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के कॉन्फ्लिक्ट निकाल सकते हैं, फिर पूरी हिस्ट्री लेने की जरूरत नहीं। लेकिन जो माइथमेटिकल केसेस होते हैं उनमें आपको डिटेल हिस्ट्री लेना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अगर एक्यूट केसेस है, सिफिलिटिक केसेस है, तो ऐसे केसेस में आप डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ले जाओ और कॉन्फ्लिक्ट निकालो, केस सॉल्व करो। लेकिन जो क्रॉनिक केसेस है, जो क्रॉनिक डिजीजेस है, उसमें आपको पूरी हिस्ट्री लेनी ही पड़ेगी। ओके, ओके सर, ओके थैंक यू सर, थैंक यू। और साढ़े थैंक यू थैंक यू सर। सर। हाँ सर पैरालिसिस के केस को क्या दिया आपने कल की?
लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस, यस, उस केस में मैंने सल्फर दिया 200. सल्फर, या डेथ ऑफ चाइल्ड, ओके, वो एलिमेंट केस, फ्रॉम डेथ ना सर, यस, मेन रूप में एलिमेंट फ्रॉम डेथ, हाँ, डेथ ऑफ चाइल्ड. डेथ ऑफ चाइल्ड. Thank you, sir. Thank Thank you you very very थैंक यू, much. much. थैंक यू, Yes, Thank you, थैंक sir. यू. Thank yes. you. Thank you. Bye bye. See you. Thank you, sir. Yeah. God bless.